because this video is not for everyone. This video is for internal use. Internal use means I'm not going to share this video to anyone else in a social media. This is for internal use only. Yeah, yesterday video I made on YouTube, and I selected the public because I want okay, demo can see anyone. Okay, but when we are going to when we are going to start the full-fledged class, then you have one portal where you can access all this video, and those portal you have to log in. You have to create your own account, and then you can only access. And access is only given by me. Okay, so I will give access to only those people, those students who are really serious and who are really want to learn and who have paid the fees. Okay, so that access is not for everyone. Okay, so yesterday we discussed about the project. Okay, we discussed about the project because, as I mentioned, without any project, you're not going to have a good learning. Okay, so first of all, we have to focus on project. This training is completely a project-based learning. Okay, this is not any class where we are focusing on subjects. Okay, and where we are not taking any sessional test or something like that, because ultimately your sessional test, your semester test, basically based on your performance. Okay, but here uh, your performance will come only uh, when you have something achieved, when you have designed something and implemented on FPGA. Okay, so I mentioned I mentioned that what project we are going to do. So we have a 2 module schematic. Okay, where we are focusing only on digital design. Okay, so already we discussed. If you have if you don't know what we have discussed yesterday, I already shared my video there, and today I will discuss on HDL, Verilog. Okay, so what is basically a Verilog? I will give you the demo on Verilog. So how this schematic and HDL is connected. Okay, many times what I face that many students from electronics background, people are saying, sir, I don't want to do programming because मुझे प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है, मैं प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं कर सकता, या मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं. ओके, उसका एक रीजन है कि उनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला रीजन उनका कॉन्सेप्ट, उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है. राइट, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, उनके पास डिजिटल डिजाइन, ओके, डिजिटल डिजाइन का कॉन्सेप्ट नहीं. राइट, वेरिलॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है. मैंने कल एग्जांपल दिया था, जितने भी आप आईसी, प्रोसेसर, सेंसर्स आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, गाड़ियों के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर, ओके, वो सब कुछ वेरिलॉग से ही निकलकर आगे आता है. मतलब विदाउट वेरिलॉग, विदाउट VHDL, ओके, यू कैन नॉट डिजाइन एनी हाई एंड प्रोसेसर्स व्हाटएवर. राइट, तो वेरिलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक ऐसा डोर है जो आपको VLSI में, इंडस्ट्री में लैंड कराता है. तो बहुत सारे बच्चे, अराउंड 70-80% बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है. उसका सिंपल एक वजह है, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि वो किसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. दूसरा, उनके पास लॉजिक बिल्डिंग नहीं है. ओके, लॉजिक बिल्डिंग, अगर मैं लॉजिक बिल्डिंग की बात करूं, ओके, तो लॉजिक बिल्डिंग का मतलब ये है कि वो कुछ हिट एंड ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं. ओके, तो हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाने की वजह से उनका लॉजिक नहीं बन पाता है. उनके अंदर एक फियर है कि ओके, लॉजिक कैसे बनाएं. राइट, तो इन 2 चीजों पर मैंने पूरा फोकस किया है. सबसे पहले अगर मैं बोलूं, अगर आपको डिजिटल नहीं पता है, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका वीक है. अगर आपको डिजिटल नहीं पता, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका वीक है. और जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं पता कि आपका जो मक्स है 2:1 मक्स, या डिकोडर, ओके, डिकोडर 8:3 डिकोडर, ओके, ये काम कैसे करता है, ये तो बहुत बेसिक चीज है.
देन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल क्या है, या टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल क्या है, या सिंक्रोनस या असिंक्रोनस इनपुट एंड आउटपुट्स क्या, ये सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस इनपुट्स कैसे होते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। इन कॉन्सेप्ट्स को हम डिजिटल डिजाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो कोडिंग पे जाने से पहले हमको डिजिटल डिजाइन पता होना चाहिए। जो थ्योरी आपने बुक में पढ़ी है अभी तक पास होने के लिए, या आप पढ़ोगे पास होने के लिए, ओके, वो यही है। पर डिफरेंस क्या है मेरे में और उनमें? वहां पे थ्योरी है, वहां पे आप मक्स 2:1 बना के छोड़ दोगे, यहाँ पर हम मक्स को पकड़कर अलग अलग चीजें बनाएंगे। ओके, तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उनको टेंशन नहीं लेना, उनकी डिजिटल मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। जो सेकेंड ईयर के हैं उनकी भी डिजिटल जीरो से स्टार्ट होगा। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस इम्प्लीमेंटेशन, तीनों चीज पैरेलल में चले, राइट। तो मैं अभी तक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपका डिजिटल से तैयार होगा। लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको कोडिंग के अंदर, अगर मैं लॉजिक बिल्डिंग, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, तो कोडिंग के अंदर सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स, सिंटेक्स आप सब वर्ड समझते हो, सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स सब सम प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, ठीक है, जिनको यूज कर कर हम अपना डिजाइन बनाते हैं, राइट। तो सिंटेक्स बहुत तरीके के होते हैं, बेसिक सिंटेक्स, एडवांस सिंटेक्स, इंटरमीडिएट सिंटेक्स, सुपर एडवांस सिंटेक्स। ओके, तो सिंटेक्स बहुत तरीके के होते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए कि उन सिंटेक्स को यूज कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंटेक्स है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंटेक्स है ये, ठीक है, शायद कुछ लोगों को पता होगा, बट नहीं, ये सिंटेक्स है आपका एंड। ये एक्चुअली ये एंड लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता है, राइट। मैं अभी पूरा एक कोड आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये एक एंड लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिंटेक्स का, इस सिंटेक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इस सिंटेक्स में कितने इनपुट दे सकते हैं, इस सिंटेक्स में कितने आउटपुट आएंगे, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इन सिंटेक्स का आइडिया है, ओके, देन यू कैन इजिली मेक अ लॉजिक। अदरवाइज आप सोचते रहोगे लॉजिक कैसे बनाऊं, लॉजिक कैसे बनाऊं, लॉजिक कैसे बनाऊं। तो सिंटेक्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है, राइट। तो सिंटेक्स और भी तरीके से होते हैं, जैसे आप सबने अपने बेसिक प्रोग्रामिंग की होगी, जैसे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इफ, आपने पढ़ा होगा, इफ एल्स, यही सब चीजों को यूज करना, इफ एल्स, केस, लूप्स, ओके, ऑपरेटर्स। ओके, तो प्लीज इसमें कोई फियर मत करना, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। एक एक चीज को हम लोग फोकस करेंगे, एक एक चीज को हम लोग 10 बार अलग अलग तरीके से बनाएंगे। एंड मेरा जो अपना इस मेंटरिंग का पिछले जो 10 सालों का जो एक्सपीरियंस है, वो इन आप जैसे बच्चों के साथ है कि कभी भी ना हाई एंड पे मत जाओ, सबसे पहले बेसिक बिल्डिंग पर वर्कआउट करो। ओके, सो जो भी आप यहाँ पर डिजाइन में चैलेंजेस फेस करोगे, उस चीज को हम लोग कोडिंग से सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल चैलेंजेस का मतलब क्या हुआ? अगर आपको 16 बिट का एडर बनाना है, 16 बिट का एडर गेट से, तो आपको कम से कम 16 मिनट लग जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपको एक 16 मिनट का एक एडर, लेकिन अगर आपको एक 16 बिट का एक एडर बनाना है यूजिंग एचडीएल, तो शायद 16 सेकंड लगेंगे। तो दिस इज द ह्यूज गैप। लेकिन आपके मन में होगा तो हम सीधे हम कोडिंग ही क्यों ना करें, राइट। आपके मन में ये होगा, जब हम 16 मिनट वहां क्यों इन्वेस्ट करें। ओके, तो याद करो कि हम लोग जब बाईसाइकिल चलाते हैं, साइकिल हमने जब सीखा होगा, तो हमने हमेशा छोटी साइकिल से ही सीखा है। ऐसा नहीं हुआ कि हम सीधे बड़ी साइकिल पर आ गए, राइट। तो स्कीमेटिक आपका वो मॉड्यूल है जो आपका डिजिटल का बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। तो 16 बिट हम वहां क्यों गए? क्योंकि हमें वहां पर छोटे छोटे मॉड्यूल्स को सीखना था, कॉन्सेप्ट डेवलप करना। जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो बहुत इजी तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
हार्डवेयर डिजाइन का बहुत ही इजी तरीके से। ओके, ये मेरा एक हाफ एडर है, ठीक है। इस हाफ एडर को स्कीमेटिक्स में डिजाइन करेंगे, फिर इसको हम लोग वेरिलॉग से इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये आज का डेमो का पार्ट है, हाफ एडर। ओके, तो व्हाट इज हाफ एडर? लाइक दिस, ए बी सम एंड सी आउट। ओके, तो हाफ एडर क्या करता है? ये बेसिकली दो इनपुट को ऐड करता है, राइट। फॉर एग्जांपल 0 1, फॉर एग्जांपल 0 and 1। ओके, इस तरह से। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 0। तो 0 + 0 क्या होगा? सम 0। आपने कुछ कैरी आया नहीं, ठीक है। बेसिक अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, डोंट वरी। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो कैरी आया नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो सी आउट 0, ठीक है। 0 + 1, तो 0 + 1 यानी कि सम 1 एंड कैरी 0। 1 + 0, 1 + 0 यानी कि सम 1 अगेन कैरी 0। ओके, एंड नाउ 1 + 1। यहाँ पे सबको लगता है कि ये 1 + 1 2 है, तो बेसिकली ये 2 ही है। बट हम इसको लिखते कैसे हैं? बाइनरी में लिखते हैं हम 0 1, ठीक है। बाइनरी में हम 2 को लिखते हैं 0 1। तो ये बेसिकली आपका सम हुआ, एंड दिस इज योर कैरी आउट। याद रखना है, चीजों को बिल्कुल सही तरीके से बोलना है। कैरी आउट बोलना है, कैरी वर्ड नहीं यूज करना है। तो योर सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1, ठीक है। तो ये आपका एक दो आउटपुट निकल कर आए। ओके, देन बिल्डिंगें तभी खड़ी होती है जब नींव मजबूत होता है, हमेशा चीज को याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसका गेट लेवल पे, ये मैप का अगर मैं इसका हार्डवेयर डिजाइन करता हूँ, तो मुझे ये मिलता है, ठीक है। इनको गेट नहीं पता, डोंट वरी, वी विल फोकस ऑन गेट फ्रॉम द बेसिक्स, ए एंड बी, सम एंड सी आउट। ओके, तो बेसिकली ये आप देखोगे ना, 0 1 1 0 बेसिकली एक एक्सऑर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 0 0 1 ये बेसिकली एक एंड गेट का ट्रुथ टेबल है जो एक एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड दिस इज योर एंड, राइट। तो ये मेरा स्कीमेटिक है। इसको यूज कर हम बना सकते हैं फुल एडर। देन हम फुल एडर को यूज करके हम बना सकते हैं 2 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 8 बिट, वट एवर एडर। ओके, तो यहीं पे बेसिकली टाइम लगता है, जहाँ पे हम कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, हम उनको बना रहे हैं, हम उनको सिमुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली टाइम लगता है। ओके, दिस इज अ टाइम टेकन टास्क। ओके, बट एक चीज याद रखना हमेशा, जो चीज आप एक बार अच्छे से बना लोगे, उसको सिमुलेट कर लोगे, ओके, और वो चीज कंपोनेंट कहीं और भी बार बार आ रहा है, तो 3rd ईयर 4th ईयर में आप इस चीज का रिप्लाई नहीं करोगे कि अरे सर हमने तो 2nd ईयर में पढ़ा था। आप सोचो ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि अगर कोई बोलता है कि सर मैंने ये 2nd ईयर में पढ़ा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि डिजिटल मैंने 2nd ईयर में पढ़ा, ठीक है। तो इस टूल का, जिस टूल पे कल मैंने आपको डेमो दिया था, अगर उस टूल पे आप ये 10 बार बना दोगे तो लाइफ लॉन्ग हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये होगा हार्डवेयर डिजाइन। अगर अब मैं इसकी कोडिंग की बात करूं, मैं आपको इसको 3 तरीके से कोड करके दिखाऊंगा आज, ठीक है। बहुत इजी है। तो पहला तरीका है हाफ एडर को। ओके, पहला पहला अगर मैं वेरिलॉग की बात करूं, ओके, वेरिलॉग को डिजाइन करने वाले किसी को आइडिया है वेरिलॉग को किसने डिजाइन किया था? एनीवन? किसी को कोई आइडिया है वेरिलॉग को किसने डिजाइन किया था? चलो कोई बात नहीं, वेरिलॉग को डिजाइन किया था मिस्टर प्रभु गोयल, वन ऑफ द इंडियन। ओके, एंड इन 1980s, 80 82 83, he's a, I think he's a alumni of IIT Kanpur or IIT Kharagpur. I am confused with K because both are K. Okay, but I will confirm. So Mr. Prabhu Goyal. Okay, Mr. Prabhu Goyal. Okay, इन्होंने, अच्छा अब वेरिलॉग है क्या बेसिकली, ठीक है। HDL है क्या? HDL
है क्या? हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ओके, मैंने अभी हाफ हेडर की बात की, ठीक है। सम एंड कैरी आउट, ये एक हार्डवेयर है। ओके, मैंने इसको भी डिस्क्राइब किया है गेट लेवल के टर्म्स में, कंपोनेंट लेवल के टर्म्स में। बट अगर अब मुझे इसको लैंग्वेज के फॉर्म में मैं इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो बेसिकली हमें कुछ सिंटेक्स को यूज करना पड़ेगा। सिंटेक्स, अगेन सिंटेक्स क्या है? वो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज। ओके, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज जो हमें एक कोडिंग के अंदर मिलते हैं, जो एक प्रॉपर कलर कोडेड होते हैं और जिनको हम यूज करते हैं और उससे हम कोई लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर किसी भी सर्किट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, ओके, टेक्स्ट के फॉर्म में। टेक्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट, टेक्स्ट। ओके, तो किसी भी सर्किट को डिफाइन करने के लिए अगर हम कुछ टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है। तो 1980s से पहले 1960s 1950s में बहुत डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज थी, ABL, लॉट ऑफ। ओके, तो उससे क्या होता था कि एक यूजर को बहुत ढेर सारी लैंग्वेज को कमांड करना पड़ता। दैट इज व्हाई इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू लर्न एवरी लैंग्वेज एट वेरी एडवांस लेवल। तो 1960s या 70s में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, USA ने एक एक कॉमन लैंग्वेज बनाई जो है VHDL। ओके, वो भी एक HDL है, VHDL। V का मतलब होता है VHSIC, वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट, HDL, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन एंड लैंग्वेज, बेसिकली ये है। तो 1960s में 1970s में ये एक VHDL करके एक लैंग्वेज आई, करेक्ट। ओके, तो उसके बाद VHDL में चैलेंजेस क्या है कि बहुत एडवांस है, बहुत बल्कि लैंग्वेज है, बहुत ढेर सारे सिंटेक्स को यूज करना पड़ता है टू स्टार्ट द डिजाइन। सिंटेक्स, ओके, कॉल करना पड़ता है टू डिजाइन को स्टार्ट करने के लिए, बट बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही पावरफुल है। ओके, तो उसको देखते हुए 1980s में मिस्टर प्रभु गोयल ने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज को इन्वेंट किया, जो सी के प्लेटफॉर्म पे थी, जो सी के सिंटेक्स को यूज करके बना सकते थे। तो प्रभु गोयल जी ने इसको डिजाइन किया एंड देन 1983-84 के आसपास इस लैंग्वेज को कैडेंस ने एक्वायर कर लिया। ओके, फिर उसकी ये प्रोप्राइटरी लैंग्वेज हो गई, फिर कैडेंस ने इसको 1993 में 1994 में इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो यू विल गेट ऑल द हिस्ट्री, I will share you one PPT and you will get all the history. Okay, but today our concern is to give a demo on how this description, how this circuit and how this code we can write it. Okay, so in next Verilog जब भी हम स्टार्ट करते हैं, बेसिकली वेरिलॉग तीन तरीके के होते हैं। okay, एक होता है आपका गेट लेवल, एक होता है आपका डेटा फ्लो, मैं कोशिश करूंगा आपको तीनों से करा दूं, एक होता है आपका बिहेवियर। ओके, आप बस इतना मान के चलो कि जब भी हम वेरिलॉग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं मॉड्यूल, और एक कीवर्ड यूज करते हैं एंड मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल के बीच में हम लोग लॉजिक लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है आपका इनपुट, आउटपुट एंड लॉजिक। तो चलो इसका लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और वहां पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि इसको, इस पूरे सर्किट को, ठीक है, इसको कल हमने इसका हार्डवेयर डिजाइन किया था। ओके, तो इसको हम लोग कैसे एक कोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, अगर आपको आइडिया लग गया तो आपके लैंग्वेज, आपके रिज्यूमे में कम से कम 2 से 3 पेज का कंटेंट रेडी हो गया है, ठीक है। एंड देन लेट मी सी हु इज स्टॉपिंग यू टू टेक अ जॉब इन कोड। ओके, so please be focused here, don't leave. I'm sharing my screen.
अगर कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी, प्लीज डोंट शाई, शर्माना नहीं है। शर्माओगे तो अपने लिए नुकसान करोगे, मेरे लिए नुकसान नहीं करोगे। ओके वेट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके तो देखो, कल हमने ये बनाया था, राइट। कल हमने फुल हेडर डिजाइन किया था। एक बार आपको मैं हाफ हेडर डिजाइन करके फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो राइट क्लिक, न्यू सोर्स, टाइप इट हियर हाफ हेडर। This is a tool where which you are going to install in your system. Half header. Okay. Next, finish. Everything is documented, so you don't have to worry about कि ये मैं tool कैसे सीखूंगा, सर बहुत तेजी से step पे काम कर रहे हैं। Don't worry, everything is ready with us. कैसे tool में काम करता है सब कुछ हमें है, हमारे पास ready है। And to, तो ये हो गया and, then we have to call XOR. Okay, and then we have to make a connection. Okay, like this. Like this. And this is IO marker. Okay, and then we have to change the name A and B, A, B। मेरा ये भी प्लान है कि मैं आने वाले टाइम में इसके अंदर पाइथन भी ऐड करूं। इससे एक ट्रेनिंग के अंदर एक पाइथन का मॉड्यूल भी ऐड करूंगा मैं। वेरी रिसेंटली आई डिसाइडेड पाइथन ऑन एफपीजीए। तो हार्डवेयर डिजाइन, स्कीमेटिक डिजाइन एंड कोडिंग एंड पाइथन, ये दोनों ही तीनों ही कनेक्टेड रहेगा। ओके, सम कैरी कैरी आउट आउट। ओके, तो ये हो गया मेरा डिजाइन रेडी। अब इसको सिमुलेट करते हैं। डिजाइन, सिमुलेशन, हाफ हेडर, दिस हाफ हेडर, रन। ओके, तो ये मेरे वेब फॉर्म्स हैं, तो आप लोग किताबों में यूज, नोटबुक पे आप इसको फील नहीं कर सकते। पीयूष, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ए को वैल्यू फोर्स किया हमने, ए को 0, बी को 1, देन यू विल गेट सम 1 एंड कैरी 0। ओके, so this tool will help you to force the value 0 and 1 like this. Okay, now let's design this half header in terms of coding. Okay, तो वेरी सिंपल, इसी टूल के अंदर ही हम वेरिलॉग में भी डिजाइन कर सकते हैं। राइट क्लिक, न्यू सोर्स, वी विल सेलेक्ट द वेरिलॉग मॉड्यूल एंड वी विल राइट अ हाफ हेडर यूजिंग वेरिलॉग गेट लेवल। मैं पहले गेट लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि गेट लेवल है क्या, गेट लेवल क्यों यूज करते हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा। ओके, आ गई आवाज। ओके, सो लेट मी, तो वी विल डिजाइन अ हाफ हेडर यूजिंग गेट लेवल, ठीक है। ये मैंने भी इसको कमेंट कर दिया है। तो मैंने एज आई मेंशन्ड, वेरिलॉग always start with keyword module. Now you will see that color of the module is changed. This is the blue now, module and module. Okay, so basically you know that in your half header you have a 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट, ठीक है। तो इस 2 इनपुट और 2 आउटपुट को आपको कोडिंग के फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। सो पहले उसको आपको डिजाइन का नाम देना पड़ेगा, राइट। तो आई विल गिव हाफ हेडर वी। ओके,
तो जो भी ब्लैक कलर में आ रहा है वो बेसिकली आइडेंटिफायर है, राइट? आइडेंटिफायर मीन्स यूजर डिफाइंड, राइट? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम सी आउट ए एंड बी, लाइक दिस, ओके, एंड सेमीकोलन। तो अभी ना क्या है, यहाँ पर हमको पता है सम एंड सी आउट मेरा आउटपुट है, पर टूल को तो नहीं पता ना कि इसमें से इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। देन वी विल डिफाइन सेपरेटली आवर इनपुट एंड आउटपुट, लाइक दिस, एंड आउटपुट सम एंड सी आउट, करेक्ट, लाइक दिस, ओके। तो अभी मैंने बोला गेट लेवल होता है क्या है। गेट लेवल, गेट से आप वर्ड एक समझ रहे होगे, गेट। तो वेरिलॉग का वो मॉडल है जहां पर हम किसी कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। वो कंपोनेंट चाहे लाइब्रेरी का कंपोनेंट है या हमारा खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट है। हेलो, ओके। सो तो यहाँ पे मेरे पास दो कंपोनेंट हैं। आप देखो यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंट है एक्सऑर एंड, ओके। तो we will call XOR like this because XOR is a library here. तो देखो इसका ब्लू कलर चेंज हो गया, एंड we will take one branch name. तो we will take branch name. This is a common. तो हमेशा क्या होता है, जब भी एक सिंटेक्स होता है, जब भी हम किसी कंपोनेंट को कॉल करते हैं, पहले हम आउटपुट डिफाइन करते हैं, फिर हम इनपुट डिफाइन करते हैं, लाइक दिस, ओके। ये एक फॉर्मेट है, ओके। किसी भी गेट को कॉल करना है तो हम लोग इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, राइट? तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इस XOR से आउटपुट क्या निकल रहा है? एनीवन? इस XOR से आउटपुट क्या निकल रहा है? सम वेरी गुड, सम सम, वेरी गुड, सम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम, ठीक है। और इनपुट क्या है? ए एंड बी। वेरी गुड, ए एंड बी, ठीक है। तो इनपुट मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, ए एंड बी, वेरी गुड, लाइक दिस, ओके। देन and b2 is our syntax. B2 is basically we are defining the different branch, okay। तो अभी वहां पे है मेरा कैरी आउट, सी आउट और ए एंड बी, सिंपल, खत्म, फिनिश, ओके। नाउ माय कोड इज फिनिश, दैट्स ऑल। तो बिल्कुल ये है आपका गेट लेवल मॉडल। यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट है, हो सकता हो कल को 20 कंपोनेंट है, हो सकता है कल को यहाँ पे 200 से ज्यादा कंपोनेंट। तो आपको कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका यही है। इसमें थोड़ा बहुत और भी चेंजेस हैं, वो आपको टाइम टू टाइम में बताता चलूँ, राइट? तो अब इसको सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट करके इसको चेक करते हैं। तो पहले इसको प्रीवियस वन वी विल क्लोज इट, ओके। जस्ट रिमेंबर दैट सम एंड सी आउट, ओके। अब यहाँ पर सपोज करो कोई एरर है, सपोज दैट आई मिस दिस सेमीकोलन, सपोज दैट आई मिस दिस सेमीकोलन। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ओके, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सी कंसोल बॉक्स पे देखो यहाँ पर, ठीक है, आई एम गेटिंग वन एरर, सिंटेक्स एरर नियर आउटपुट। सो इफ आई विल क्लिक हेयर, आई विल गेट वन ब्लू मार्कर हेयर, दैट मीन्स या तो यहाँ पे एरर है या इसके ऊपर एरर, लाइक दिस, ओके। तो सेमीकोलन मिसिंग था, उसको मैंने सही कर दिया। अब इसको सिमुलेशन पे जाते हैं, राइट क्लिक, रन। तो अगर आपको हाफ एडर का कॉन्सेप्ट पता है तो आप सिंटेक्स बहुत इजीली यूज कर सकते हो, लाइक दिस। एंड प्रैक्टिस नीड्स हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग, ओके। हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग मीन्स टाइम चाहिए, ये थ्योरी नहीं है, ओके। दिस इज जस्ट लाइक अगर आपको क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, या चेस खेलना है, या कैरम खेलना है, वॉट एवर द स्पोर्ट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस। सिमिलरली दिस प्रोग्रामिंग ऑल्सो, सी कैरी आउट एंड, ओके। मैंने गलती किया है यहाँ पर कि मैंने पिछला डिजाइन सेलेक्ट किया है, तो मुझे सेलेक्ट करना है हाफ एडर अंडरस्कोर वी। तो दिस इज माय डिजाइन, सिमुलेट बिहेवियर मॉडल, रन। बिकॉज यहाँ पर सी आउट है, वहां पे कैरी आउट है, ओके। सो वेरी सिंपल, मिनिमाइज दिस 3 times, दिस A 0,
B1. Okay, A0 and B1. See, so sum 0, sum 1 and carry 0. Okay, so this is the way we have designed gate level. अब एक काम करते हैं, इसी के नीचे ही मैं डिजाइन करता हूँ. वैसे हम अलग अलग यूज कर सकते हैं मॉड्यूल. ओके, वेरिलॉग इज बेसिकली अ केस सेंसिटिव. वेरिलॉग इज बेसिकली अ केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव. ओके, तो मॉड्यूल अब हम लोग जा रहे हैं डेटा फ्लो. डेटा फ्लो, तो बेसिकली डेटा फ्लो में क्या होता है? डेटा फ्लो में हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं. मुझे बताने की जरूरत नहीं है ऑपरेटर्स क्या है. ऑपरेटर्स वो एक फंक्शन है जो कोई लॉजिक परफॉर्म करता है. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक्सऑर और एंड कॉल किया है, वैसे ही ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स भी होते हैं एक्सऑर के और एंड के. ठीक है, वो सेम लॉजिक परफॉर्म करेंगे जो वो गेट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो इसको करते हैं HA_, डेटा फ्लो DF. ठीक है, मैं यहाँ पर GL कर देता हूँ. गेट लेवल ये हो गया डेटा गेट, गेट लेवल फ्लो, गेट लेवल डेटा फ्लो. सेम, सब कुछ सेम रहेगा. सम सी आउट A and B. ओके, सेमीकोलन, इनपुट A and B, आउटपुट सम एंड सी आउट, लाइक दिस. ओके, अब यहाँ पर डेटा फ्लो में क्या होगा? यू हैव टू कॉल सम ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर को कॉल करने का तरीका क्या है? एक कीवर्ड होता है असाइन. जब मैं आपको वेरिलॉग पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे. असाइन बेसिकली क्या है? आपका कंटिन्यूस असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है जो बेसिकली इनपुट को आउटपुट के अंदर असाइन करने के लिए यूज होता है. राइट, तो इसकी एक प्रॉपर थ्योरी है, प्रॉपर डेफिनेशन है. तो इसको यूज करने का तरीका क्या है? सम ए एक्सॉर का ऑपरेटर कहाँ गया? एक मिनट, ए एक्सॉर बी. तो आप देखो ये जो है बीच में जो लगाया मैंने, ये ऑपरेटर है एक्सॉर का. ठीक है, ये एक्सॉर का ऑपरेटर है. एंड फिर असाइन कैरी सी आउट. देखो कितना इजी है. और ए एंड बी अगेन, ये आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है. ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे? एक्सॉर. ये क्या है आपका? ये आपका एक्सॉर ऑपरेटर है. राइट, एक्सॉर ऑपरेटर. दिस इज योर हियर, दिस इज योर लॉजिकल एंड ऑपरेटर. खत्म. ठीक है, एंड मॉड्यूल, दैट्स ऑल. सी, तो जैसे मैं सेव करूंगा, आई विल गेट अनदर DF. यू कैन सी हियर DF, हाफ ऑर्डर डेटा फ्लो. ओके, इसको सिमुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से सिमुलेट होगा. ओके, सिमुलेट द बिहेवियर मॉडल, रन. नाउ द थर्ड मॉडल इज अ बिहेवियर मॉडल जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा. इफ एल्स केस. ओके, तो सेम तरीके से इसको सिमुलेट करते हैं. ओके, दिस टाइम आई विल गिव बोथ 1. ओके, तो A1 and B1, A1 and B1, like this. See here, sum 0 and carry 1, sum 0 and carry 1. Okay, so this is how we have designed half header with the help of data flow. Now let's design the half header with help of behavior. ठीक है, BHAVIOR, behavior model. ओके, सेम चीज है यहाँ पे भी. इसको ऐसे ही कॉल करेंगे. ओके, यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि हर एक कोडिंग का ना अपना एक स्ट्रक्चर है. इस चीज को समझने की कोशिश करना. हर एक मॉडल का, चाहे वो गेट लेवल हो, डेटा फ्लो हो और बिहेवियर हो. तो देखो, आप गेट लेवल में आपने यहाँ पर सिर्फ कंपोनेंट कॉल किया और आपने कोई असाइन वर्ड नहीं कॉल किया. ठीक है, डेटा फ्लो में आपने असाइन वर्ड कॉल किया. अब बिहेवियर मॉडल में आपको एक और कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, रेज. ठीक है,
जब हम कोडिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बेसिकली रेज इज अ वेरिएबल। अगर आपको याद होगा वेरिलॉग सी और सी प्लस प्लस में आप एक वेरिएबल यूज करते हो। द रोल ऑफ वेरिएबल इज टू स्टोर द टेम्परेरी वैल्यू। ओके, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज रिफ्रेश वेन एवर द न्यू वैल्यू विल कम। ओके, so this is called the reg. So here sum and out को हमें एक sum and c out को हमें एक वेरिएबल की तरह डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? So this is the based on syntax C. Then another keyword we are using here, always. Always का मतलब ये होता है कि we have to use, okay, always के अंदर कोई भी चीज लूप में चलती है, वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप थोड़ा सा काउंटर पढ़ लोगे मेरे थ्रू, तब आपको लूप समझ में आएगा कि फीडबैक क्या होता है, राइट? तो ऑलवेज एट द रेट ए एंड बी, ये एक सिंटेक्स है। बिगिन इफ याद करो आपने पढ़ा होगा, इफ ए इक्वल टू 1 टिक बी 0 सिंटेक्स है, एंड बी इक्वल टू 1 टिक बी 0, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आपका सम है, ठीक है? सम आपका आएगा 1 टिक बी 0 एंड सी आउट आएगा आपका 1 टिक B0, 1 टिक B0, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको सारी कंडीशन को सेपरेटली डिफाइन करना पड़ेगा। तो कुछ सिंटेक्स हैं जो आपको खेलना पड़ेगा उन सिंटेक्स के साथ, ठीक है? ये आपका एक कंडीशन हो गया कि जब दोनों ही 0 0 आएंगे तब क्या होगा? सब 0 होगा एंड कैरी 0 होगा। बिकॉज बिहेवियर में हमें ना उनके बिहेवियर से मतलब है, हमें मतलब नहीं है कि वो क्या हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज वन थिंग। अब इसको कॉपी करते हैं एंड और यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ begin. अब if a is equal to 0 and b 1, a is equal to 0 and b 1, then sum 1 and carry 0 like this. And फिर से अपन उसको ऐसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारी पॉसिबल कंडीशंस वी हैव टू मेंशन हियर, ऑल पॉसिबल कंडीशंस। ओके, नाउ a is equal to 1 and b 0। ओके, तब भी आपका सम 1 आएगा एंड कैरी 0 आएगा। ओके, एंड a is equal to 1 and b 0 में आपका आएगा a is equal to 1 and b is equal to 1 में सम 0 and carry 1। ओके, एंड 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 देन एंड मॉड्यूल, मैंने लिखा नहीं एंड मॉड्यूल। अभी देखना पड़ेगा इसमें सिंटेक्स का कुछ एरर हो सकता है या नहीं होगा, विल सी हियर। ओके, तो देखो ये थोड़ा सा, ये कोड थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट? ओके, बड़ा होना ही था क्योंकि इसमें हमें हर पॉसिबल कंडीशंस के साथ काम करना पड़ रहा था। तो मेरे पास अभी देखो एरर है, इसका सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा। हाफ एडर अंडरस्कोर डीएफ नहीं है, हाफ अंडरस्कोर बिहेव। ठीक, हाफ एडर अंडरस्कोर बिहेव। तो इसके अभी सिंटेक्स एरर को ठीक करते हैं, काफी है। हाफ एडर अंडरस्कोर इसको मुझे सेपरेट बनाना पड़ेगा। कंट्रोल सी, राइट क्लिक, न्यू सोर्स, वेरिलॉग, हाफ एडर बिहेव, नेक्स्ट फिनिश, लाइक दिस। ओके, तो इसको सेव करने से दिस इज बिहेव। ओके, दिस इज बिहेव। चेक सिंटेक्स,
अभी देखते हैं मेरे पास कहाँ कहाँ पे एरर है। तो एरर के कंसोल बॉक्स पे जाएंगे लाइक दिस एंड विल सी लाइक दिस हियर। तो 1 tick B0 यहाँ पे हमने गड़बड़ किया, 1 tick B0 लगेगा लाइक दिस। देन लेट्स सी और कहाँ पे एरर्स है। ओके, वो मैंने सब जगह गड़बड़ कर दिया। 1 tick B, 1 tick B, 1 tick B। ये सिंटेक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो अगर आपको सिंटेक्स का आइडिया तभी आपको कोडिंग में इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपको सिंटेक्स का नहीं पता है तो आपको कोडिंग में देखो सक्सेसफुल। तो देखो अब मैंने एक गलती किया, इसकी वजह से मुझे एरर आया, लेकिन मुझे सिंटेक्स का आइडिया है। ठीक है, सब बिगिन कहाँ यूज करना है, एंड कहाँ यूज करना है, इफ कहाँ यूज करना है। तो देखो मेरा कोड बिल्कुल सक्सेसफुल रन हो गया। ठीक है, अब इसको सिमुलेट करते हैं लाइक दिस रन। ओके, लाइक दिस ए को 1, बी को 0, ए को 1, बी को 0 लाइक दिस। तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। ओके, तो दिस इज द वे। हमने यहाँ पर एक मैं अभी स्क्रीन पे आ रहा हूँ। ओके, दिस इज द वे वी हैव रिटन द ऑल 3 मॉडल्स। ओके, कोडिंग राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी अपनी खुद की R&D ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस लेवल के बच्चे नहीं आ पाते जिन्होंने 500-600 लाइन का कोड लिखा हो और कुछ रियल वर्ल्ड के साथ कोई इंटरफेस कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कीपैड, नोटपैड, सॉरी कीपैड, LCD, SSD, LED, UART, VGA, ठीक है, ADC, DAC, अगर इन्होंने चलाया हो 2-3 सालों में, ओके, वेरिलॉग को यूज करके, ओके, तो उनको मैं क्या, उनको बहुत सारी कंपनीज बैठी हुई है 1.5-2 महीने की इंटर्नशिप लेने। तो जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है, राइट। तो ये आपको सीखना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। प्लीज इसलिए मत ज्वाइन करना कि फैसिनेट होकर कि यार कोर में कुछ करना है, उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा अगर आप टाइम नहीं दे पाओगे। ओके, अगर आप नंबर्स के पीछे भाग रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको अपने शेड्यूल से 1 घंटे, आधे घंटे रोज या अल्टरनेट डेज पे निकालना है, वीक डेज के अंदर काम करना है, राइट। कल कुछ बच्चे आए थे तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया था कि सचिन तेंदुलकर सचिन क्यों बना, राइट। ऐसे बहुत से बच्चे, मैं भी खुद गली में क्रिकेट खेलता था, राइट, मेरे जैसे बहुत से लोग गली में क्रिकेट खेलते, ठीक है। कोई फिर स्कूल में जाके खेलना शुरू किया, या किसी ने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, जोन को रिप्रेजेंट किया, सिटी को रिप्रेजेंट किया, बट वो नेशनल या इंटरनेशनल नहीं खेल पाए, बट कुछ लोग खेले। जितने भी बड़े खिलाड़ी देख लो, या जो भी खिलाड़ी हैं आज की डेट में, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 21, वट एवर, और नेशनल इंटरनेशनल, उन सबके पीछे एक कोच होता है, ठीक है, एक मेंटर होता है, एक कोच होता है, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, चाहे वो फील्डिंग कोच हो। ओके, क्योंकि वो कोच का काम क्या होता है, राइट, कोच का काम क्या होता है, आपकी बारीकियों पे वर्कआउट करना। ओके, तो सचिन, ब्रायन लारा एंड whoever, Chris Gale, सहवाग, whoever, राइट, दे ऑल आर वेरी गुड प्लेयर्स, बट कोई भी आगे आया तो उसको एक कोच मिला जिन्होंने उनकी बारीकियों पे काम, तो वही काम मैं भी कर रहा हूँ। ओके, मेरे Tier 3 कॉलेज के बच्चे आज सिनॉप्सिस, क्वालकॉम, मेंटेग्राफिक्स में लीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम जैसे कुछ इंडस्ट्री के मेंटर्स मिले, उनके बारीकियों पे वर्कआउट किया, उनको रेडी किया, उनको एटीट्यूड दिया, उनके एप्टीट्यूड समझा, और आज वो इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। बट उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के फ्रेंड्स जो उन पे हंसते थे कि कहाँ चले जा रहे हो सैटरडे संडे, आओ घूमने चलते हैं, आज वो वही बच्चे बताते हैं कि सर मेरे वो दोस्त जो हम पे हंसते थे वो आज दूसरे डोमेन में हैं, दे आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर नाउ एट गुड स्टेज। ठीक है, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 3 से 5 साल में
अपने लिए गाड़ी ले पाएंगे या अपने लिए फ्लाइट बुक कर पाएंगे. आई एम गिविंग यू सम इंटरनल इन्फॉर्मेशन. ओके, दिस इज नॉट relevant but this is not irrelevant also. Okay, because ट्रेनिंग के साथ साथ ना एक मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है. बीटेक करना है, फिर 3 साल के बाद जॉब में रहते हुए 5 साल के अंदर हमें एमटेक फिनिश करना है, वो भी आईआईटी से. फिर एमटेक फिनिश करने के बाद अगर मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में या नेक्स्ट 3 इयर्स में मौका मिल रहा है एमएस करने का बाहर जाके या किसी कंपनी के साथ ऑन साइट जॉब में जाकर, हमें वहां भी जाना है. तो आपको अपना ना एक साइकिल बनाना है, आपने कुछ रोड मैप्स फिक्स करने हैं, और उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आई एम द की फैक्टर विथ who is going to help. Okay, so this is all from my side. I have given a demo in last 2 class, yesterday also and today also, कि हम basically करने क्या वाले हैं. और अभी I am going to add a Python also, another module, Python on FPGA. Okay, Python on FPGA very soon. Okay, ये थर्ड मॉड्यूल होगा. Okay, तो इसमें क्या होगा, पहला मॉड्यूल जैसे मैंने आपको बताया, हार्डवेयर डिजाइन पूरा गेट लेवल पर, सर्किट लेवल पर. देन एचडीएल डिजाइन, ठीक है, ये भी एक गेट लेवल पर और एफपीजीए पे इम्प्लीमेंट हो रहा है. ठीक है, ये भी एफपीजीए पे इम्प्लीमेंट हो रहा है. एंड देन यू हैव अनदर पाइथन. तो आपको पाइथन सिखाऊंगा, पाइथन डिजाइन ऑन एफपीजीए. ओके, सो इस पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली काम करेंगे. पहले फोकस करेंगे हार्डवेयर पे और एचडीएल पर. ओके, तो बच्चे लोग कोई क्वेश्चन है तो बताओ, कोई डाउट है? सर हाउ कैन आई रन वेरिलॉग इन वीएस कोड? वीएस कोड पे नहीं चलेगा. वेरिलॉग के लिए ये जो टूल है ना, इस पे चलेगा या ईडीएम प्लेग्राउंड पे चलेगा, बट वीएस कोड पे नहीं चलेगा. ओके, ये टूल मैं आपको दूंगा, डोंट वरी. ओके नैना, ठीक है नैना, कोई और क्वेश्चन है आपके? तो ओके, तो आज से तो टुडे इज आवर लास्ट डेमो सेशन. अब कल से या आज से मैं आपका एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा. तो अभी क्या करना होगा, जो हमने एक्सेल शीट शेयर किया है, उस एक्सेल शीट पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी ईमेल आईडी एंड व्हाट एवर द रजिस्ट्रेशन अमाउंट यू हैव टू क्लोज इट. एंड देन आपका एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा, बिकॉज अब मैं इस ग्रुप में नहीं पिंक करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स. ओके, सो आई विल मेक अ सेपरेट ग्रुप and your group name will be SF53. Okay, SF means Skill Foundation 53. Okay, so उस ग्रुप में आप, मैं और जितने भी कंसर्न लोग रहेंगे उस ग्रुप को फॉलो करें. राइट, so this is all from my side. If you have any doubt, any question, please feel free to ask. Don't worry, don't hesitate. Okay, अगर आज आप यहाँ पर शर्माओगे, सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरे क्वेश्चन सिली हैं, मेरे दोस्त मेरे पे हंसेंगे या वो क्या हंसेगा, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा जो मैंने अपने कुछ दोस्तों से सीखा है, जो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है कि वैभव, इनको बोलो जितनी बेइज्जती करनी है यहाँ कर लें, मेरे सामने, अपने सामने एक छोटे से रूम में. बिकॉज अगर यही बेइज्जती इंटरव्यू के अंदर हो गया कि ये कैसे काम करता है, हाफ हेडर, फुल हेडर, वॉट एवर गेट्स और वॉट एवर, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के पास करने के बाद अगर आपने वेरिलॉग में 100 लाइन का कोड भी नहीं लिखा है, तो ये बेइज्जती है, इंसल्ट है. ठीक है, तो जितनी बेइज्जती करानी है इसी कमरे में करा लो, बाहर कराओगे तो फिर अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, या फिर वो एक रियल इंसल्ट हो जाएगा. तो मेरा सबको मैसेज होता है, आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन आस्क. ओके, तो बाय एवरीवन. एंड या एनी क्वेश्चन? सर, इज द मॉरिस मेनू you have tell for? yes yes dear, otherwise एनपीटीएल के लेक्चर्स हैं, जो जो मैं पढ़ाऊंगा, जितना जितना मैं पढ़ाऊंगा, आगे नहीं पढ़ना है. जैसे मैंने गेट्स पढ़ाया तो सिर्फ गेट्स के बारे में पढ़ना है, मैंने फुल हेडर पढ़ाया तो फुल हेडर के बारे में पढ़ना. तो एनपीटीएल हो गया, या और भी एक दो अच्छे लेक्चर्स हैं, नीसो एकेडमी है, NESO. ठीक है, नीसो एकेडमी के भी आप लेक्चर देख सकते हो. अगर आपको किताब खरीदने में अच्छा लगता है, मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप प्लीज किताब खरीद लो, ये मेरी लाइब्रेरी है बगल में. ठीक है, तो ये है यहाँ पर मॉरिस मैन. ठीक है, अच्छी बुक है,
एक ही चीज दे रखा है। ओके, लेकिन बुक में और मेरे पढ़ाने में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। बुक में के मैप से पढ़ाया गया है, बुक में डी मॉर्गन थ्योरम से पढ़ाया गया है, राइट। I don't touch K-map. I don't touch any theory like any type of theorems. मेरा मानना क्या है कि अगर हम लोग किसी मेथड को फॉलो करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में एक कैलकुलस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। तो अगर मैं आपका टीचर हूँ, मेरे सामने 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन डिजिटल इतना स्ट्रांग है कि अगर मैं के मैप को ना फॉलो करूँ, अगर मैं थ्योरम्स को ना फॉलो करूं, तो मैं एक तरीके के 20 सर्किट बना सकता हूँ। यानी कि मेरे पास जो 20 बच्चे होंगे सामने, 20 बच्चे 20 तरीके के सर्किट बना के लाएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिजिटल डिजाइन, राइट। तो हम अपन के मैप को नहीं टच करेंगे, के मैप आपके कॉलेज में टच होगा, थ्योरम्स आपके कॉलेज में टच होगा, ओके। बट यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि हमें कोई भी थ्योरम्स, कोई भी के मैप के बिना हमें सर्किट को डिजाइन करना है। ओके, तो डन माय डियर। Okay, we'll see tomorrow. Sorry, not tomorrow. Day after next Saturday, Sunday. अगर कोई पब्लिक हॉलीडेज होगी तो हम लोग क्लास लेंगे, और आपको मैं क्लास से पहले एक या 2 दिन पहले ही बताऊंगा। और सैटरडे संडे को हम एक टाइम फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा टाइम चेंज होता रहेगा। उससे ये होगा कि अगर हमारा टाइम चेंज होगा तो आप लोग के पास एक फिक्स पैटर्न नहीं रहेगा। तो एक टाइम अपन फिक्स कर लेंगे, उससे ये होगा कि हम लोगों को कि हमें कुछ भी प्लान करना है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, राइट। तो मैं ये वीडियो आपको शेयर कर लूंगा। दिस इज नॉट एडिटेबल वीडियो, आई डोंट फोकस ऑन दिस थिंग राइट नाउ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, या फिर दोस्तों को दिखाना है या उनको ज्वाइन करना है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। ओके, so that's all, everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank Bye.